Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is day 23 of this playlist Dynamic Programming from Scratch and हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2. Okay, so obviously if you haven't watched part 1 of this video, just go to the playlist and watch that because obviously that is a prerequisite to this video. प्रीवियस वीडियो में हमने MCM दैट इज मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन उसका रिकर्जन का थोड़ा सा हिंट लिया था. ठीक है, और अगर आपको मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन पहले से नहीं पता है देन आई रिकमेंड यू टू जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन पूरा का पूरा पढ़ा दिया था. ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू सी लाइक हाउ इट्स रिकर्जन वर्क्स एंड फिर उसके बाद हम रिकर्जन का कोड लिखने वाले हैं. ठीक है, और रिकर्जन का कोड लिखने के बाद ऑब्वियसली वी हैव टू कन्वर्ट इट टू मेमोइजेशन. ठीक है, और मेमोइजेशन करते साथ ये क्या बन जाएगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होके ये काइंड ऑफ डीपी बन जाएगा. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज न्यूटन स्कूल. So basically, as we all know, Newton School is an e-learning platform which have different programs especially designed for you. Their first program is pay after placement program, under which they will teach you for 6 months and they will make you a full stack developer. And not only this, after that they will also get you placed in different companies like Zomato, ThoughtWorks, Google, Byju's, Xiaomi, Unacademy, TCS. So what they have is they have tie up with all these companies, and firstly after making you full stack developer, and they will also get you placed and for minimum CTC of 5 lakhs. So it is also a good thing. So you can see here that application of full stack development course is still open for September batch. So if you want to apply, just come to newtonschool.co and apply for this full stack development course. Second thing they have especially designed for you is Launchpad initiative. Like if you want to start learning for free and you want to get other benefits also like quizzes for you and certificates also, so you can just come to newtonschool.co and opt any course from Launchpad initiative, and you will also get certificate after completion of the course, and you can also perform quizzes here and everything. Okay, so just come to newtonschool.co and check their both initiatives. Pay after placement program, under which you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of the company after 6 months of training as a full stack developer. And then their Launchpad initiative, like if you want to start learning for free, you can just come here. Last thing, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just come to this YouTube channel where we are posting one video every day so that you can get regularly updates. Okay, and right now we are in our DP playlist and we already have seen many topics. So let's just begin with our today's video, that is matrix chain multiplication part 2. So why I have written here part 2, I have already told you. like इस वीडियो में हम इसका MCM का दैट इज मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के रिकर्जन कोड पे वर्क करने वाले हैं. ठीक है, रिकर्जन इन द सेंस कैसे रिकर्जन इसका वर्क करता है, कैसे हम इसका रिकर्जन कोड लिखने वाले हैं, फिर कैसे ऑल ऑप्टिमल स्ट्रक्चर समझने वाले हैं इसके कोड का. ठीक है, MCM के. फाइन. तो सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू MCM एग्जैक्टली होता क्या है, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन है. हमारे पास होता क्या है, हमारे पास कुछ मैट्रिक्स होंगी ABCD फॉर से. ठीक है, और मैं लिखूँ यहाँ पे अगर A1 A2 A3 एंड A4. ठीक है, मुझे इन सारी मैट्रिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना है. सबसे पहला मेरा मेथड क्या होगा, सबसे पहला मेथड होगा कि मैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड करूँ. ठीक है, ऑब्वियसली 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैं क्या करूँगा, और अगर मैं इससे बड़ा कोई एक एग्जांपल लूँ. ठीक है, A1 A2 A3 A4 एंड A5. ओके, तो 5 मैट्रिक्स मैंने ले ली. अब मैं बोलूँ कि मुझे इन सारों को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं सबसे पहले बोलूँगा कि मैंने A1 A2 को साथ में मल्टीप्लाई कर लिया और इन तीनों का मैं अभी बाद में देखता हूँ. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे A मिला और ये यहाँ पे मेरे पास था A3 A4 एंड A5. अब मैं बोलूँगा कि सपोज मैंने इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास आया A, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सपोज मेरे पास B था और बचा A5. ठीक है, अब मैंने बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया मान लो AB डैश, फिर इन दोनों को, तो फाइनल आंसर. ठीक है, जो मुझे निकालना था. तो यू कैन सी इजली कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ.
मेरी जो मेन मैट्रिक्स की चेन थी, मैंने पहले सबसे पहले क्या किया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट 1 पार्ट 2, दैट इज सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया। ये मेरी कंप्लीट प्रॉब्लम थी जिसका मुझे मल्टीप्लिकेशन निकालना था। मैंने उसको एक सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया। उस सब प्रॉब्लम को मैंने कैसे किया, मेरे पास दो सब प्रॉब्लम्स आई, P1 एंड P2, ठीक है। P1 का मैंने सिंपली आंसर निकाला क्योंकि उसमें ऑब्वियसली दो मैट्रिक्स थी, उनका मल्टीप्लाई मैं इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है। और मल्टीप्लाई इन द सेंस नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो मैं ये ब्रीफ में दोबारा बता रहा हूँ, मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर रखा है, जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। और फिर ये सब प्रॉब्लम मेरी P2 बनी। P2 को अगेन मैं क्या करूँगा, अगर ऑब्वियसली ये बेस केस नहीं है, बेस केस क्या, जब इसमें दो ही मैट्रिक्स बच जाती हैं या फिर इसमें एक ही मैट्रिक्स बची हो, दैट इज A1, तो मैं बोलूँगा कि इसका मल्टीप्लाई किसी और मैट्रिक्स के साथ जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं है, तो यू कैन से जीरो। A1 का मल्टीप्लाई जीरो के साथ क्या आ जाएगा, जीरो। तो यू कैन से दैट दिस कैन ऑल्सो बी योर बेस केस, फाइन। तो अभी के लिए हम बेस केस नहीं देख रहे। ये मेरी प्रॉब्लम P2 आई सब प्रॉब्लम। अगेन मैं सब प्रॉब्लम को देख रहा हूँ और सब प्रॉब्लम में मेरे पास मोर देन 2 मैट्रिक्स हैं, दैट इज मैं उनका एक बार में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। सो व्हाट आई विल सिंपली डू इज आई विल अगेन डिवाइड दिस सब प्रॉब्लम इनटू 2 सब प्रॉब्लम्स एंड दिस कंप्लीट थिंग इज रिकर्जन। हम रिकर्जन में क्या करते थे, जो में हमारी मेन प्रॉब्लम होती थी, हम उसको सब प्रॉब्लम में बांटते बांटते क्या करते थे, फाइनल आंसर अपना बिल्ड करते थे। ओके फाइन। सो हमें वही अभी करना है और हमें वही देखना है। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर बताऊं, जो कि मैंने ऑलरेडी ये भी बता रखा था, तो मैं बोलूँगा A1 A2 A3 A4 A5, ये मेरे पास 5 मैट्रिक्स आई हैं। मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे यहाँ से इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, रिकर्जन में हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ डिफाइन करते हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज़, है ना। टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो सकती हैं, इसको दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने की, क्या क्या हो सकती हैं। मैं यहाँ से लगा दूँ ब्रैकेट, या फिर मैं यहाँ से लगा दूँ, या यहाँ से, या यहाँ से, या यहाँ से, ठीक है। तो टोटल, अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, दैट इज़ 5, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करने की, दैट इज n-1। अगर ये टोटल n है तो टोटल पॉसिबिलिटीज टू डिवाइड दिस प्रॉब्लम दैट इज p इनटू सब प्रॉब्लम इज n-1। कैसे, मैंने यहाँ पे लगाया एक पॉसिबिलिटी, 2 3 एंड 4, यू कैन ईजिली सी दैट, ओके, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटी हो गई n-1। फिर मुझे एक सब प्रॉब्लम मिलेगी P1 एंड P2। उन सब प्रॉब्लम्स को भी मैं लाइक ये P1 है और ये P2 है, ठीक है, मैं इन दोनों का अलग अलग रिजल्ट निकालूंगा, ठीक है। और उस रिकर्जन के बाद मेरे पास P1 का आंसर एक बनेगा, दैट इज रिकरेंस फंक्शन। एंड यू कैन से लाइक मेरे पास P1 एक प्रॉब्लम थी और उसकी रेंज मुझे पता होगी ऑब्वियसली, लाइक A1 से लेके A3 तक मेरे पास इतनी मैट्रिक्स नहीं। सपोज मैंने यहाँ से P1 P2 बनाई, तो P1 हो गई, ठीक है, उसकी रेंज मैंने दे दी 1 से 3, फाइन, प्लस ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑपरेशंस P2 के ऐड होंगे, ऑब्वियस सी चीज़ है, ठीक है। मैं जो चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वही बता रहा हूँ। P2 नंबर ऑफ ऑपरेशंस इसके करने के लिए मुझे इसकी रेंज चाहिए, दैट कैन बी फ्रॉम 4 to 5, मैंने लिखा 4 to 5 इसकी रेंज थी P2 की प्रॉब्लम की, ठीक है। प्लस इसमें और एक चीज़ क्या ऐड होगी, जब मैं P1 और P2 को साथ में मल्टीप्लाई करूँगा, एग्जैक्टली मेरा हुआ क्या, मुझे P1 में एक फाइनल मैट्रिक्स मिल गई A' और P2 में एक फाइनल मैट्रिक्स मिल गई B'। अब मुझे इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैं सिंपली कैसे कर सकता हूँ, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैंने, या नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे निकाल सकता हूँ मैंने। आई एम सेइंग कि A' की डायमेंशन जो है वो A क्रॉस B हैं और B' की डायमेंशन जो है वो C क्रॉस D हैं, ठीक है। तो मैंने इसका नंबर ऑफ ऑपरेशंस एग्जैक्टली बताया था कैसे निकाल सकते हैं। B और C इक्वल होते हैं इसमें, ऑब्वियसली इफ वी आर मल्टीप्लाइंग दीज टू मैट्रिसेस टुगेदर, ठीक है। A और D का इसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे निकलेंगे, A क्रॉस D क्रॉस B, ठीक है। तो इन फाइनल मैट्रिक्स के लिए भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे कि हमारे पास अगर इन दोनों के डायमेंशंस हैं तो हम लिखेंगे सिंपली A क्रॉस B क्रॉस D, ठीक है। और ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आंसर, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ओके। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस जब मैंने ब्रेक डाउन कहाँ पे किया, 3 पे, जब मैंने ब्रेक डाउन 3 पे किया।
अब मुझे ब्रेक डाउन कहाँ कहाँ पे करना है, वन ब्रेक डाउन कैन बी हेयर, वन ब्रेक डाउन कैन बी हेयर, वन ब्रेक डाउन कैन बी हेयर, वन कैन बी हेयर, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आई विल इटरेट इन कंप्लीट दीज इंडेक्सेस, मैं इन चारों इंडेक्सेस में इटरेट करूंगा एग्जैक्टली, ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, हर इंडेक्स के लिए एक बार रिजल्ट निकालूंगा कुछ ऐसा करके, और अपना मेन जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, क्योंकि मुझे मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरा था क्या एमसीएम का, दैट आई हैव टू फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस फॉर मल्टीप्लाइंग दीज मैट्रिसेस टुगेदर, ठीक है, फाइन। अब मैं अगर रिकर्जन की बात करता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये पूरा रिकर्जन तुम लोगों को समझा दिया कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन मैं कोड पे आता हूँ, कोड और अप्रोच पे, ठीक है। तो रिकर्जन का फंक्शन अगर अब मुझे लिखना है, ठीक है, तो रिकर्जन का फंक्शन सपोज मेरे पास, मैंने तुम्हें क्या बोला था प्रॉब्लम में मुझे मिलती क्या है एग्जैक्टली, एक एरे मिलती है। सपोज ये मेरी एक एरे थी 10 20 30 10 40, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स मैंने कितनी बताई थी मेरे पास कितनी होंगी इसमें, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएंगी 4। सिंपल सी चीज़ है, कैसे, फर्स्ट के डायमेंशन ये, सेकंड के ये, थर्ड के ये, फोर्थ के ये, ठीक है। ये बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट के डायमेंशन मिल गए, तो अब मैं बोलूँ कि मुझे एक रेंज चाहिए, ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है, अगर ये मेरी कंप्लीट प्रॉब्लम पी है, तो इस प्रॉब्लम पी में मुझे एक रेंज चाहिए जिस रेंज पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई कैन से कि मेरे पास दो इंडेक्सेस हैं आई एंड जे, एंड प्रॉब्लम पी में आई जो है वो लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स है और जे जो है वो राइट मोस्ट इंडेक्स है, ठीक है। और यू कैन से किसी भी प्रॉब्लम पी का ये लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है, ठीक है, फाइन, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स। अब मुझे इन दोनों इंडेक्सेस के बीच में ऑपरेट करना है, ऑपरेट इन द सेंस मुझे सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है यहां से मैं अभी इस पी प्रॉब्लम को डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है, फाइन। तो मैंने बोला कि i इज इक्वल्स टू कुछ लेफ्ट एंड है और j इज इक्वल्स टू कुछ राइट एंड है। अब मैं बोलूंगा कि वन थिंग मोर, i एग्जैक्टली मैं लूंगा क्या, वैल्यू क्या लूंगा अगर मुझे पूरी की पूरी प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, तो i से कि i इज इक्वल्स टू 0 लेके देखते हैं। अगर मैंने बोला कि मेरी एक मैट्रिक्स ये है, दूसरी मैट्रिक्स ये है, तीसरी मैट्रिक्स ये है, ठीक है, तो मुझे एक मैट्रिक्स लेने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, सिंपली आई और जे मेरे लेफ्ट और राइट एंड है, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं, फाइन, आई और जे मेरे इस मैट्रिक्स चेन के लेफ्ट और राइट एंड, फाइन। अब मैंने बोला कि आई इज इक्वल्स टू 0 सपोज करो, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स के डायमेंशन कौन कौन से हैं, A1 के डायमेंशन कौन कौन से हैं, ये दोनों। अगर मैंने i इज इक्वल्स टू 0 सपोज किया, तो i इज इक्वल्स टू 0 से मुझे दो डायमेंशंस मिलेंगे। अगर ये मैंने कंप्लीट एरे बनाई A, तो मुझे दो डायमेंशंस मिले i इज इक्वल्स टू 0 से करंट मैट्रिक्स के, दैट विल बी एरे ऑफ नॉट एंड एरे ऑफ i, सॉरी, एंड एरे ऑफ i प्लस 1। ये क्या है, ये मेरे करंट मैट्रिक्स i के डायमेंशंस हैं, इजी सी थिंग है, ठीक है। फिर मुझे सेकेंड मैट्रिक्स के डायमेंशन चाहिए, i इज इक्वल्स टू 1 पे गया, सेकेंड मैट्रिक्स के डायमेंशन मिलेंगे मुझे एरे ऑफ i प्लस 1, ओके। इजी सी चीजें, कुछ भी तुम्हें दिमाग नहीं लगाना। आई एम सपोजिंग कि तुमने इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर रखे होंगे पहले भी, है ना, तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब मैं फॉर सिंप्लिसिटी मैं क्या कर रहा हूं, मैं i को यहां से शुरू कर रहा हूं। कैसे, हम क्या कर सकते हैं, मैंने एक मैट्रिक्स यहां ली, सेकंड मैट्रिक्स यहां ली, थर्ड मैट्रिक्स यहां ली, फोर्थ मैट्रिक्स यहां ली, ठीक है। तो अगर फोर्थ मैट्रिक्स मेरी यहां है, फोर्थ मैट्रिक्स मेरी ये है, ठीक, तो उसके डायमेंशन के लिए मुझे j को यहां पे करना पड़ेगा, तभी मेरा जो j से मुझे डायमेंशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एरे ऑफ j एंड एरे ऑफ j प्लस 1। अगर मैंने यहां पे j रखा सिंपली, तो j प्लस 1 जो है वो मुझे क्या हो जाएगा, आउट ऑफ बॉन्ड, वो तो एरे के साइज में आएगा नहीं। दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, सिंपली j को यहां पे रखूंगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी।
मैंने i को कहाँ से शुरू किया, 0 से, और j को कहाँ तक रखा, n-2 तक। सिंपल सी चीज़ है। और सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि दैट मैं i को यहां से शुरू करूं, i इज इक्वल्स टू 1 से, और j को लास्ट तक रखूं, दैट इज n-1 तक। अब ऐसा क्यों करेंगे, अगर मैंने i इज इक्वल्स टू 1 रखा तो ये मुझे फर्स्ट मैट्रिक्स के डिमेंशंस देगा, एंड दैट विल बी सिंपली एरे ऑफ i-1 एंड एरे ऑफ i। ये मेरे फर्स्ट मैट्रिक्स के डिमेंशंस हैं, ठीक है। और i इज इक्वल्स टू 1 है तो फर्स्ट मैट्रिक्स के डिमेंशन, तो फॉर सिंप्लिसिटी मैंने ऐसा कर लिया। और ये i को 1 से क्यों स्टार्ट किया, यू कैन सी इजली, ताकि i-1 एरे में ही रहे और आउट ऑफ बॉन्ड ना जाए, क्योंकि एरे में -1 इंडेक्स नहीं होता, ठीक है। अगर मैं i इज इक्वल्स टू 0 लिखूंगा तो ai-1 आउट ऑफ बॉन्ड चल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। तो फर्स्ट थिंग मेरी क्लियर हो गई कि अगर मुझे करंट रिकर्जन जो शुरू करना है उसमें जो लेफ्ट एंड मेरा हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1 और राइट एंड मेरा हो जाएगा j इज इक्वल्स टू n-1। फाइन, तो ठीक है, मुझे रिकर्जन फंक्शन में क्या क्या पास करना था, अपनी पूरी एरे, ठीक है। तो मैंने एरे पास की, फिर मुझे लेफ्ट और राइट एंड पास करना था। एक प्रॉपर जो मेरी प्रॉब्लम है, कोई भी सब प्रॉब्लम है, मान लो P से P1 P2 बनी, ठीक है। P1 और P2 में दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ये जो तुम्हारी कंप्लीट एरे थी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, सपोज इतनी और इतनी, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास ये रेंज होनी चाहिए कि ये दोनों इंडेक्सेस हैं कौन से। दैट्स वाई इसमें दो चीज़ें और पास करनी है, दैट इज i और j, रेंज ऑफ करेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में अभी तक क्लियर होगी सारी चीज़ें। अब मुझे सिंपली रिकर्जन का क्या लिखना है, बेस केस। रिकर्जन का बेस केस देखते हैं। मैंने बोला था रिकर्जन का बेस केस क्या होता है, मिनिमम वैल्यूज पॉसिबल, लाइक जो भी तुम्हारे इनपुट्स हैं उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यूज के लिए सर्च करो। i और j की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तुमने अगर काइंड ऑफ बाइनरी सर्च का भी क्वेश्चन लगाया है तो तुम्हें इस तरह में तुम्हें समझ में आ रहा होगा इजली कि एग्जैक्टली होना क्या है। मेरा इन दोनों के बीच में पॉइंटर बढ़ना है, ठीक है। i 1 से शुरू करेगा और मेरा जो पॉइंटर है, दैट इज जो ब्रैकेट्स रखने का मेथड है, वो i से j की तरफ चलेगा। तो मेरा बेस केस इस केस इन चीज़ों के लिए वो एग्जैक्टली क्या होता है, i इज इक्वल्स टू j होता है। ऑब्वियसली जब मेरा i j के बराबर या j से आगे निकल जाएगा, वहाँ पे कहीं पे मेरा लूप एंड होना होगा। ये बाइनरी सर्च का मेथड होता है और वहाँ से तुम इसमें हिंट ले सकते हो, ठीक है। फाइन, क्योंकि मैं जो ब्रैकेट्स लगा सकता हूँ, ये जो मेरे ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, एग्जैक्टली जो मेरे ये ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स मैं कहाँ तक लगा सकता हूँ, सिर्फ j के जस्ट पहले तक। यहां से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। क्या तुम j के जस्ट बाद ब्रैकेट लगा सकते हो, नहीं, तो तुम इससे भी एक हिंट ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहां पे अगर मेरा जो बेस केस था वो था i इज इक्वल्स टू j। अब इसमें मैं रिटर्न क्या करूंगा ये देखते हैं। i इज इक्वल्स टू j है, मैंने बोला कि i का मुझे अब एरे चाहिए, जो मेरा एरे का डायमेंशन था, ठीक है। तो एरे का डायमेंशन मैंने i के लिए लिख दिया सिंपली ये, फाइन। और यहाँ पे मैं ये भी दिखाता हूँ कि i इज इक्वल्स टू j हो गया है, ठीक है। सपोज ये i और j हैं राइट नाउ। अगर मैंने बोला कि i और j इक्वल है, तो i एरे का डायमेंशन, मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये एरे ऑफ i-1 एंड i, ठीक है। अब मुझे ये मेरी एक करेंट प्रॉब्लम है ना, बेस केस भी एक प्रॉब्लम ही होती है ना। अब इस करेंट प्रॉब्लम में एक मैट्रिक्स तो मुझे मिल गई, दैट इज फर्स्ट मैट्रिक्स। मुझे इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जो भी jth इंडेक्स में मैट्रिक्स है, दैट इज एरे ऑफ j-1 एंड एरे ऑफ j। ये दोनों मैट्रिक्स तो सेम है, बट मैं सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैं क्यों करूंगा, ये तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे सेम मैट्रिक्स का नहीं, मुझे दो डिफरेंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो यू कैन ईजिली सी फ्रॉम हेयर कि एटलीस्ट होना क्या चाहिए, i शुड बी ऑलवेज लेस देन j, ताकि मेरे पास किसी करेंट प्रॉब्लम में एटलीस्ट दो मैट्रिक्स तो हो ही जिनका मुझे मल्टीप्लाई करना है। अगर एक सिंगल मैट्रिक्स a1 है तो उसका मल्टीप्लाई मैं क्या करूँगा, एम्प्टी मैट्रिक्स के साथ। और एम्प्टी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, वो सिंपली क्या रिटर्न करता है,
रिटर्न 0। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये मेरा बेस केस यहाँ पे डिफाइन हो गया कि अगर i इज इक्वल्स टू जे है, दैट मीन्स इन करेंट सब प्रॉब्लम आई हैव ओनली वन मैट्रिक्स, ठीक है, ध्यान से सुनना है। इन करेंट सब प्रॉब्लम आई हैव ओनली वन मैट्रिक्स एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस सिंगल मैट्रिक्स विद जीरो मैट्रिक्स, मेरा जो करेंट सब प्रॉब्लम का आंसर है वो कितना हो जाएगा, 0, फाइनल आंसर फॉर करेंट सब प्रॉब्लम, ठीक है। अब मुझे लिखना है यहाँ पे रिकर्जन स्टेप। मैंने रिकर्जन स्टेप तुम लोगों को ऑलरेडी बहुत बार बताया। मुझे क्या करना है, आई मैंने कहाँ पे लिया था, आई मैंने लिया था यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स, जे मैंने तुम्हें यहाँ पे लिया था। मुझे आई से लेके जे तक इटरेट करना है, मैंने वो किया क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्रैकेट्स रखने हैं, है ना। तो मैंने बोला कि मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट्स रख के देखता हूँ। तो मैंने k इज इक्वल्स टू आई से k इज इक्वल्स टू जे तक मैं कहाँ तक ब्रैकेट्स रख सकता हूँ, इस पर कंफ्यूज मत होना, k लेस देन जे होगा, ठीक है। एंड k में प्लस प्लस, ये किया मैंने। अब मैंने अगर करंट ब्रैकेट kth पोजीशन पे रखा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने पहले बताया था P1 का आंसर प्लस P2 का आंसर प्लस P1 और P2 से जो दो मैट्रिक्स बनेंगे दैट इज A डैश और B डैश, उनका आंसर, और वो कितना हो जाएगा, सिंपली A क्रॉस D क्रॉस B। ये कैसे निकालेंगे ये चीज़ अभी देखते हैं। हम पहले P1 और P2 का आंसर लिखते हैं। P1 का आंसर लिखने के लिए सिंपली रिकर्जन स्टेप कैसे लिखते हैं ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। सिंपली यहाँ पे लिखो रिटर्न रिकरेंस फंक्शन प्रॉब्लम P1, या फिर तुम्हारी मेन एरे ही पास करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। I और J की वैल्यू पास करनी है, तो तुम एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, तुम I से शुरू कर रहे हो और कहाँ तक जा रहे हो, K पे डिवाइड कर रहे हो। करेंट प्रॉब्लम सपोज ये तुम्हारा I था, ठीक है, और तुम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हो, तो तुम एग्जैक्टली ये कर रहे हो। तो P1 तुम्हारी क्या बन गई, I से लेके K तक, ये K था तुम्हारा, और P2 क्या बन गई, K प्लस 1 से लेके J तक। तो P2 क्या बन गई, रिकरेंस ऑफ एरे K प्लस 1 टू J, ठीक है। प्लस अब तुम्हें ये चीज निकालनी है, ये चीज कैसे निकालते हैं, इजी सी चीज है, ये देखते हैं, ठीक है। सपोज आई एम सेइंग कि मैंने अपनी मैट्रिक्स को अभी यहां पे ब्रेक किया, ठीक है, यहां पे मैंने दो ब्रैकेट्स रखे थे। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं, दैट इज यहाँ पे अभी एक सिंगल मैट्रिक्स है ये तो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं कर सकता एग्जैक्टली। मैंने बोला कि मैं यहाँ पे ब्रेक किया, सपोज मैंने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, और इसको हटाओ अभी, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूँ A1 A2 A3 एंड A4, मैंने इनको ऐसे किया, ठीक है। A1 का कुछ डायमेंशन होगा A क्रॉस B, इसका डायमेंशन लिया मैंने। अब अगर A1 और A2 का मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो वो ऑब्वियसली क्या हो सकता है, B क्रॉस D, ठीक है। इस पे कंफ्यूज भी मत होना, दैट इज ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल होंगी तभी इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इससे अगर जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, सिंपली नंबर ऑफ ऑपरेशंस की, या फिर इसका जो P1, ये P1 है ना, P1 का मेन डायमेंशन क्या आएगा, A क्रॉस D, इसका फाइनल डायमेंशन जो इससे मैट्रिक्स बनेगी P1, इसका फाइनल डायमेंशन देख लेते हैं। सपोज इसका डायमेंशन था x क्रॉस y, इसका डायमेंशन था c क्रॉस d, या फिर y क्रॉस d ऑब्वियसली, ठीक है। y क्रॉस d डैश कर लो, d वो ना हो, y हट जाएगा फिर से अगेन, इसका फाइनल डायमेंशन बनेगा x क्रॉस d डैश। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अगर ये P2 था, ये P2 था और ये P1 था, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये चीज़ बराबर होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब मुझे ये चीज़ निकालनी है इन दोनों डायमेंशन से, तो वो एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी, A दैट इज फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे, फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे मल्टीप्लाई D डैश दैट इज लास्ट वैल्यू ऑफ एरे। सिंपल सी चीज़ है, बस ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई D या X दैट इज जहां पे मैंने उसको डिवाइड किया था, और यू कैन से सिंपली A ऑफ K, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, A ऑफ I फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे और योर करेंट प्रॉब्लम मल्टीप्लाई A ऑफ J लास्ट वैल्यू ऑफ एरे मल्टीप्लाई A ऑफ K, ठीक है।
तो इंडेक्सिंग में मत जाना अभी। अब इसका मैं फाइनल रिकर्जन कोड दिखाता हूँ तुम लोगों को, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ये था एक पूरी एरे आई और जे, लेफ्ट एंड राइट हैंड, करेंट प्रॉब्लम के। आई इज इक्वल्स टू जे है, तो मैंने सिंपली क्या किया, मेरे पास सिंगल एरे है, सिंगल मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जीरो मैट्रिक्स के साथ करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है। फिर मैंने ये के लिया जिससे मैं इटरेट करने वाला हूँ अपनी करेंट प्रॉब्लम में, और ये फाइनल आंसर मिनिमम में। अब मैंने आई से जे तक इटरेट किया, और करेंट प्रॉब्लम का आंसर कितना हो जाएगा, आई से के तक सब प्रॉब्लम P1, k प्लस 1 से j तक सब प्रॉब्लम P2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये चीज पी आई माइनस वन मल्टीप्लाई पी के मल्टीप्लाई पी जे। पी आई माइनस वन क्यों लिया है, सिंपल सी चीज है, ये मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि मैंने आई कहाँ से स्टार्ट किया था, फर्स्ट इंडेक्स से, तो मुझे फर्स्ट वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, आई माइनस वन करना पड़ेगा फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे के लिए, ठीक है, और लास्ट वैल्यू ऑफ एरे और केथ वैल्यू ऑफ एरे, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और अगर ऑब्वियसली जो तुम्हारा करंट सब प्रॉब्लम का आंसर है, या फिर जहाँ पे तुम करंट ब्रैकेट रख रहे हो वो अगर लेस है तुम्हारे फाइनल आंसर से, तो अपडेट कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। If you haven't visited newtonschool.co, just go and visit it. And if you have any doubt, you can just ask me in comment section. Check their pay after placement program, their launchpad initiative, and go and subscribe this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School. Thank you guys for watching.